Dear students, good morning all of you. How are you? I hope that each and every student must be fit and fine. Dear student, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, अभी हम लोगों का क्या चल रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा था। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं सारी बातों को बता चुका हूँ, जितना इंपॉर्टेंट थिंग्स है इस टेंस से रिलेटेड मैं सारी बातों को बता चुका हूँ। लेकिन आज जो है बच्चे, ये मिक्स्ड सेंटेंस, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड मैं मिक्स्ड सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप सारे बच्चे अगर कायदे से इसको देखे होगे रेगुलरली और सारे को राइट डाउन करके अगर तुम नोट्स बनाए होगे, तो ये सारा वाक्य जितना है तो आपको बनाने में इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू ट्रांसलेट दिस ऑल द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। सो डियर स्टूडेंट, दोज स्टूडेंट्स हु आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट और वेरी हार्ड वर्किंग, तो आई होप दैट कि आउट ऑफ 10 सेंटेंसेस इवन देयर विल बी नो सिंगल सेंटेंस लेफ्ट दैट वुडंट बी ट्रांसलेटेड बाय दैट स्टूडेंट। दैट मीन्स व्हाट, कि जो बच्चा अगर रेगुलरली और कायदे से मेरे वीडियो को देख रहा है तो एक भी सेंटेंस उससे अभी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। कहने का गर्ज ये होगा कि सारा सेंटेंस तुम लोगों से बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि आप रिलक्टेंट स्टूडेंट हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, ईच एंड एवरी रूल्स इन डिटेल आई हैव एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू। दैट इज व्हाई आई होप दैट यू माइट हैव रिवाइज्ड ऑल द थिंग्स वेरी वेल, वेरी क्यूरियसली, वेरी punctually. That is why each and every student, I once again hope that you will be capable to solve all the 10 sentences, and that means what, you will be capable to translate all the 10 sentences into English. Okay. And before just going ahead, I would like to say one thing very very important. Once again I would like to inform you all the students who may be new joiner students, that's why Oxford Union English is the name of this very channel, and इनकलाबी series भी are going on, and today the video will be 38th, यानी आज का वीडियो बच्चे ये 38वां वीडियो होगा। मतलब मिक्स्ड सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड ये आज का 38वां वीडियो है। ये मिक्स सेंटेंसेस है। मिक्स सेंटेंस का मतलब ये हुआ बच्चे कि प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव होगा, डब्ल्यू एच इंटरोनेगेटिव होगा, यस नो वाला, डब्ल्यू एच वाला, तो वो सारा मैं मिक्स दे रहा हूँ। आई वॉन्ट टू चेक यू whether you have understood these all the things or not. If you have kept all the rules and regulations in your brain, and if you have understood well, that means what, now you will not have to face any difficulty translating these sentences into English. So I hope that you or a student, if you're honest, then you could just solve this very question very easily. There would be no difficulty at all. So dear student, try to understand now. Let us come to the point. But before just coming to the point, one message or one advice or one request or one suggestion I would like to just share with you. Dear student, personally I request you, keep on subscribing the videos to a large number of students so that they could benefit it. And I hope that in India, whatever university or whatever colleges are just following the major rules in the process of teaching or in the process of learning the English language, the most important or international language that has become the lingua franca of the world. So no any major rules have been described or have been taught to the student community. So I think whatever rules and regulations I am following through this very YouTube channel, that is Oxford Union English, dear student, remember, try to observe and try to just preserve or try to observe all the rules and regulations and try to keep in your brain forever, because there is no any better thing than these things whatever I am just providing through this very video. So dear student, you must keep on watching, you must keep on sharing to a large number of students, so that each and every student of India, each and every student of every state of India, and every state, maybe from rural background or maybe from urban background, it doesn't matter. My main expectation or aspiration or main intention is that this video could be intelligible to all these students, so that they equally all the students may get just benefited. So let us come to the point. Dear student, just before starting one share I would like to say कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, मुल्क के फ़िक्र ख़यालात बदल सकते हैं, दौरे जदीद के दिन व रात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं. You student can bring revolution in the field of education because it is just concerning related to language. Language is the most important gift bestowed upon humankind. So each and every student with full enthusiastically must learn this very language, that is English language, that is international. So let us come to the point, dear student. आप देखो पहला वाला वाक्य है बच्चे,
क्या कि मिक्स्ड में मैं उस लड़की से शादी करने का मन बना लिया हूँ। सबसे पहले तो आपको क्लियर करना होगा, ये डिटरमाइन करना होगा कि वेदर दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और नॉट। इफ यस देन अप्लाई द फॉर्मूला। तो देखो बच्चे, यहाँ पर है कि मैं उस लड़की से शादी करने का मन बना लिया हूँ, यानी शादी करने का मन मैं बना चुका हूँ या बना लिया हूँ। किस लड़की से? तो उस लड़की से। अब वाक्य को देख रहे हैं भाई, ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट तो है क्योंकि चुका हूँ या लिया हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। और उसके बाद जब प्रेजेंट परफेक्ट का देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ठीक है ना। तो इस एतबार से देखो बच्चे कि मैं उस लड़की से शादी करने का मन बना लिया हूँ। तो सबसे पहले मैं बना लिया हूँ, और मन बनाना का अंग्रेजी होता है बच्चे, अंग्रेजी में एक फ्रेज है मेकअप वंस माइंड, मेकअप वंस माइंड, ठीक है ना। या फिर इसके लिए अदर अल्टरनेटिव है क्या, क्या है? डिटरमीन, डिटरमीन, आई हैव डिटरमीन या आई हैव मेड अप माई माइंड। तो अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मैं उस लड़की से शादी करने का मन बना लिया हूँ, तो आई हैव मेड अप, आई हैव मेड अप my mind to marry that girl, to marry that girl, to marry that girl। फिर से समझना बच्चे कि I have made up my mind to marry that girl, या फिर अगर मेकअप वंस माइंड वाला ये फ्रेज का इस्तेमाल नहीं करते हो, सिंपल वर्ड का इस्तेमाल करते हो, तो आई हैव डिटरमीन्ड टू मैरी दैट गर्ल, ठीक है ना बच्चों। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपसे बन गया होगा, मैं बना दे रहा हूँ, आप मैच करना, ठीक है ना। आगे देखो बच्चों कि वे लोग अभी तक पटना नहीं पहुँचे हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है। प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस हैवंट प्लस हैजंट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। इस एतबार से देखो कि वे लोग अभी तक पटना नहीं पहुँचे हैं। सबसे पहले वे लोग नहीं पहुँचे हैं, तो फट से बताओ क्या जी? दे हैवेंट रीच्ड, कहाँ जी? तो पटना। दे हैवेंट रीच्ड पटना, वे लोग पटना नहीं पहुँचे अभी तक। और अभी तक का अंग्रेजी में बताया था, क्या बताया था जी? एज एट, बहुत आसान है। आगे देखो कि तुम लोग अभी तक अंग्रेजी में बात करना नहीं सीखे हो, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव, तुम लोग नहीं सीखे हो। तो सबसे पहले बनाओ कि यू, सबसे पहले बनाओ कि तुम लोग, और तुम लोग का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे? कि यू, तो यू हैवेंट लर्नड how to speak English, how to speak English। अब कब जी? एज एट, अभी तक हो गया। क्या है जी? तुम लोग अभी तक अंग्रेजी में बात करना नहीं सीखे हो, तो यू हैवेंट लर्नड हाउ टू स्पीक इंग्लिश या इन इंग्लिश, एज एट हो गया। आगे देखो बच्चे, यहाँ पर अंग्रेजी में अगर है तो यू हैवेंट लर्नड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश कर दो, यहाँ पे इन दे दो, ठीक है। तो you haven't learned how to speak in English up to now, as yet, till now. So like this you must practice again and again. Dear student, again I am emphatically stating this very notion that you must keep on revising again and again. Why? Because it is my supposition that only revision provides you perfection. So those personality or those students appearing in different type of examination and want to do something better in any field of life, in any corner of educational arena, then you will have to follow the notion to do more and more practices. Only practices gives you perfection in the process of learning anything. It is universal rules and regulations followed by the scholars of the world. So dear student, you must follow whatever I am just telling you. This must be the part of your brain having the sense to be practical over the items or notion or concept. Now see next sentence. क्या तुम लोगों को अंग्रेजी बोलना आया है? क्या तुम लोगों को अंग्रेजी बोलना आ गया है? यानी क्या तुम लोग अंग्रेजी बोलना आ गया है का मतलब क्या? वहाँ कम आना का कम नहीं दे देना, हमेशा याद रखना बच्चे एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है ना, हमेशा टेंस पढ़ते समय सेंस अप्लाई करो। If you don't apply sense at the time of in the process of learning tense, you will commit great mistake. That is why dear student, you must follow the sense. That is what कि क्या तुम लोगों को अंग्रेजी बोलना आ गया है? तो आ गया है मतलब क्या? सीख चुके हो। तो मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, और जब इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव के बारे में बताया था मैं
कि हैव या हैज से शुरू होगा सेंटेंस, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट है तो दे देंगे, नहीं तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन देकर के सेंटेंस को एंड करेंगे यानी ख़त्म करेंगे। तो क्या तुम लोगों को अंग्रेजी बोलना आ गया है? तो क्या होगा जी, हैव यू लर्नड, हैव यू लर्नड टू, हैव यू लर्नड, या फिर टू नहीं देकर यहाँ पर दो, हैव यू लर्नड हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बस हो गया, बहुत सिंपल सेंटेंस है। आई थिंक यू ऑल स्टूडेंट माइट हैव सॉल्व्ड। उसके बाद देखो बच्चे कि क्या तुम सारे स्टूडेंट अपना सबक याद कर लिए हो? बहुत आसान है, हैव यू ऑल द स्टूडेंट्स, हैव यू ऑल द स्टूडेंट्स रिमेंबर्ड योर लेसन। अब देखो बच्चे यहाँ रिमेंबर्ड के जगह में तुम मेमोराइज्ड भी कर सकते हो। हैव यू ऑल द स्टूडेंट्स, देखो जी स्टूडेंट नहीं बोलना बच्चे, हमेशा मार्क एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जस्ट फॉलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एवर प्रोनाउंसिएशन इज बीइंग फॉलोड बाई मी दैट मस्ट बी फॉलोड बाई यू। दैट इज व्हाट कि नेवर स्टूडेंट, नॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, नेवर इंटरनेट, नेवर कैरियर। तो दैट इज व्हाई हैव यू ऑल द स्टूडेंट्स रिमेंबर्ड योर लेसन। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम लोग अभी तक फीस जमा नहीं किए हो? क्या तुम लोग अभी तक फीस जमा नहीं किए हो मतलब इंटेरोगेटिव है और यस नो इंटेरोगेटिव है, और ये इंटेरोगेटिव पर भी नेगेटिव घुस गया। क्या तुम लोग फीस जमा कर दिए हो तो इंटेरोगेटिव है, लेकिन क्या तुम लोग फीस जमा नहीं किए हो तो इंटेरोगेटिव पर भी नेगेटिव घुस गया, तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव के बारे में क्या बताया था, हैवेंट या हैजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन देके सेंटेंस को एंड करेंगे। तो क्या तुम लोग अभी तक फीस जमा नहीं किए हो तो क्या होगा बच्चों, हैवेंट यू, क्या होगा, हैवेंट यू पेड द फीस, हैवेंट यू पेड द फीस टिल नाउ या अप टू नाउ, हो गया। हैवेंट यू पेड द फीस टिल नाउ, हैवेंट यू पेड द फीस अप टू नाउ, हैवेंट यू पेड द फीस एज इट। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, तुम लोग अपना कीमती वक्त को बर्बाद कर लिए हो। मैं कह रहा हूँ बच्चों को कि क्यों कहा गया है, एक शेर है बच्चे कि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए कहा गया है कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। जिस चीज़ को अभी तुम फूल समझ रहे हो हेलो हाउ में, वो चीज़ तुम्हारे लिए कल खार और कांटे बन जाएंगे। इसीलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, ट्राई टू रिकॉग्नाइज द हिडन पोटेंशियलिटी इनसाइड यू एंड जस्ट रिकॉग्नाइज द हिडन पोटेंशियलिटी, ट्राई टू ब्यूटिफाई इट। दैट इज वाई अल्लामा इकबाल सेठ कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सो डियर स्टूडेंट, यू मस्ट फॉलो, ट्राई टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, रेस्पेक्ट योर सेल्फ, decorate yourself, beautify your mentality, beautify your vision. Only through vision or through your contribution for the formation of beautiful nation, for the formation of beautiful society, you will be remembered even after your death. Now see the next sentence. मेरे प्यारे छात्रों, तुम लोग अपना कीमती वक्त को बर्बाद कर लिए हो। तो मेरे प्यारे छात्रों, देखो जी ये एड्रेसिंग टर्म है। क्या है जी, एड्रेसिंग टर्म है। तो एड्रेसिंग टर्म है तो एड्रेसिंग टर्म को पहले रख देते हैं कि मेरे प्यारे छात्रों। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस का एक एड्रेसिंग पार्ट है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इधर तुम्हारा है। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी लिखेंगे कि माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ये एड्रेसिंग टर्म है। अब यहाँ पाउच करेंगे, रुकेंगे तो यानी कोमा दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि तुम लोग अपना कीमती वक्त बर्बाद कर लिए हो। तो तुम लोग कर लिए हो तो यू हैव स्पॉइल्ड या यू हैव किल्ड। और कीमती वक्त का बताए थे प्रीशियस टाइम, यू हैव किल्ड योर प्रीशियस टाइम। ठीक है जी बच्चों, I think there mustn't be any difficulty at all. Okay, now see the next sentence कि क्यों तुम मेरे खिलाफ भाषण दिए हो। तो भाषण देने के बारे में बताया था बच्चे कि भाषण देना का अंग्रेजी बोलेंगे डेलीवर स्पीच, ना कि गिव स्पीच। डेलीवर स्पीच हमेशा याद रखना, डेलीवर स्पीच। तो क्या है
कि क्यों तुम मेरे खिलाफ भाषण दिए हो। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में WH है, और बताए थे कि WH में से कोई भी वर्ड है, वायर है, वेंड है, वाटर है, ठीक है, हार्ड है, तो उसके जस्ट बाद हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड, फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, रेस्ट है तो देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन देकर के सेंटेंस को एंड करेंगे। तो इस तरीके से बच्चे, क्यों तुम मेरे खिलाफ भाषण दिए हो, तो क्यों तुम, तो वाई हैव यू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों कि वाई हैव यू। अब भाषण देना का डिलीवर स्पीच, तो वर्ब थर्ड डिलीवर का डिलीवर्ड होगा डिलीवर्ड, और स्पीच अगेंस्ट मी, और क्या है, मेरे खिलाफ है, तो अब ये रेस्ट है, रेस्ट को रेस्ट में दे दो कि अगेंस्ट मी, बस हो गया। वाई हैव यू डिलीवर्ड स्पीच अगेंस्ट मी। अगर बहुत सारे भाषण दिए हैं तो इसको स्पीचेज कर देंगे, वाई हैव यू डिलीवर्ड स्पीचेज अगेंस्ट मी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हारी छोटी बहन कहाँ गई है, ये भी WH वर्ड है, तो कहाँ का अंग्रेजी वेयर होता है, तो वेयर हैज योर, छोटी बहन है तो यंगर सिस्टर गोन। ठीक है बच्चों, बहुत आसान था ये। तुम्हारी छोटी बहन कहाँ गई है, तो वेयर हैज योर यंगर सिस्टर गोन। मेरी छोटी बहन कहाँ गई है, वेयर हैज माई यंगर सिस्टर गोन। तुम्हारे बड़े भाई कहाँ गए हैं, वेयर हैज योर एल्डर ब्रदर गोन। तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं, वेयर हैज योर पापा गोन। ठीक है ना। तो अब आगे देखो, इस तरीके से हजारों सेंटेंसेस, सो मेनी सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर, वॉट एवर स्ट्रक्चर हैव आई प्रोवाइडेड अप टू नाउ थ्रू दिस वेरी यूट्यूब चैनल रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट you, if you want to something better in life, if you want to do something better in the field of English language and literature, then dear student, whatever rules and regulations I am providing you, each and every student must keep yourself updated with the terms. You must keep yourself abreast of it. That's why, dear student, you must follow the notions, the concept, the guidance, the suggestions delivered by me here through this very video. चलो now see the next sentence कि तुम्हारे बड़े भाई कब लंदन गए हैं। Very easy sentence. When has your elder brother gone to London? तो when has your elder brother gone to London? Okay, very easy sentence, dear student. Like this, so many sentences can be framed. And being intelligent student, you must apply your brain. Just apply your brain. You must think that कि this sentence, तुम्हारे बड़े भाई कब लंदन गए हैं, तुम्हारे पापा कब लंदन गए, तुम्हारे पापा कब मार्केट गए हैं, तुम्हारे पापा कब पटना गए हैं, तुम्हारे पापा कब पटना से आए हैं, तुम्हारी मम्मी कब स्कूल गई हैं, तुम्हारी मम्मी कब वहाँ एडमिशन ली है, तुम्हारी मम्मी कब PhD की है। सो मेनी सेंटेंसेस, यू मस्ट थिंक योर सेल्फ, थिंक। Your thinking process will lead you to action. When there will be action, there will be reaction. When there will be reaction, there will be changing. That means what? Revolution can be brought by you in any field. But first of all, you will have to think. The person who doesn't think is just like a dead personality, although he is alive, says Gandhi ji. Now see the next sentence. तुम मेरे लिए मार्केट से क्या लाए हो। Very easy sentence. What have you brought for market for me? तुम मेरे लिए मार्केट से क्या लाए हो। What have you brought? What have you brought for me from market? See the next, just mark the pronunciation, dear student. Most of the teacher, even the teachers commit mistake. Now see, brought for आप थोड़ा एडवांस से हो जाते हैं, तो अब उसी फोर को मैं कहा था कि आप उसको बोलना फॉर मी नहीं, फॉर मी। दिस इज वेरी ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज। आफ्टर दैट जी फ्रॉम, इसको क्या बोलेंगे, फ्रॉम। साफ आर का पर्ण मैंने कहा था कि एंड आर और मिडिल आर को कोशिश करेंगे जिसका प्रोनाउंसिएशन ना हो, फ्रॉम नहीं बल्कि फॉर्म। और उसके बाद जी मार्केट जो बोल रहे हैं, ये मार्केट नहीं, मार्केट। ओके, तो व्हाट हैव यू ब्राउट फॉर मी फॉर मार्केट। Okay, now see, dear student, now I would like to say one thing that is very important. These all the sentences, just put mirror before you and see yourself inside the mirror, in the mirror, and revise these all the sentences again and again. And suppose that if one sentence मैं उस लड़की से शादी करने का मन बना लिया हूँ, one sentence तुम उस लड़की से शादी करने का मन बना लिया, तुम्हारा छोटा भाई उस लड़की से शादी करने का मन बना, तुम्हारे नाना उस लड़की से शादी करने का मन बना लिए है, मान लो, तो 10 सेंटेंस तुम इसी लेवल का तुम सोचो और फिर तुम उसका अंग्रेजी बनाओ। अब कितना है, 10 है, अगर एक का 10 फिर इसका 10 फिर इसका 10, इसी तरीके से 10 वाक्य इस अंदाज में सोचो, फिर इस अंदाज में, तो बच्चे 100 सेंटेंस यू कैन फ्रेम योर सेल्फ। और ऐसा नहीं कि हमसे बन जाएगा,
बन तो सबसे जाता है, लेकिन वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। इस बात को हमेशा याद रखना, तुमको बनाना है बच्चे, हर हालत में मेरी बात को फॉलो करना। इसी तर्ज पर ये जैसा है फर्स्ट वाला वाक्य, इसी तरीके का 10 वाक्य बनाओ, दूसरा वाला वाक्य इसी तरह का 10 वाक्य बनाओ, तीसरा वाला वाक्य इसी तरह। पहले अपने से हिंदी सोचो, फिर उसको अंग्रेजी बनाओ। जब तुम लगता है तुमको मैं बना लिया हूँ, तो इसको ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू स्पीक अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। डियर स्टूडेंट, याद रखना कि एक वक्त ऐसा आएगा कि यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इंग्लिश, टू डिलीवर स्पीचेज इन इंग्लिश। Even the intellectual, maybe the student from JNU, maybe the professor from JNU, Aligarh, Jamia Millia, doesn't matter. Now education is not the ancestral property of anyone, or in the same way language is not the ancestral property of anyone. That is why this, the student who labors more and more, the more you labor, the more confident you would be, the more the intelligent level of yours would be increased. That is why, dear student, living here in any corner of India, you're living in your village also. Now it has become the age of science and innovation. Dear student, just taking the support of scientific development, just there are so many available things, dear student, you must make the use of those very items. That is why, dear student, keep yourself engaging until you will be capable to speak in English in an effectively way. You get an opportunity to go to America or London, anywhere else. Dear student, you can express yourself. Or always remember one thing, suppose that you are learning something, you have learned, never show yourself, never show your quality to anyone. Always try to express yourself, never try to impress others, never try to impress others. In the process or in order to impress others, you start losing your originality. Dear student, never engage yourself in these types of non-stuff things. That is why, dear student, once again I would like to say, dear student, keep on just watching this video, keep on subscribing and sharing this video to a large number of students, so that all the students could get benefited to a large number of students. And I hope that each and every student from India must just get benefited from this very video. Whatever lectures are being uploaded or being delivered by me, and I think it is very, very beneficial to each and every student. So, dear student, you must support me. I am just giving you full cooperation. I am just telling you each and everything. Dear student, now I am just only making you familiarize with its tense. Then after, there are so many important things related to this very language, and 22 chapters of English, complete English grammar I shall just teach you through this very YouTube channel. That is why never take tension. You mustn't need to just consult any teacher or any grammar book. Whatever I shall give you, it will be more than it. You must be preparing for different competitive examination like SSC, banking, railway, or any competitive, or UPSC, any competitive examination. English is being frequently asked. Those all the items and rules and regulation would be very clear cut explained through this very YouTube channel. That is why, dear student, you will take the advantage of these very videos. So, dear student, now it is the primary stage of mind. So you student must give full cooperation, full support for me, and I will do the best for you, dear student. Thank you very much. Now I would just like to end this very video of today citing one beautiful sher or a beautiful poet of Bihar, Shad Ajim Abadi. He says, ये बज़्म मैं है, ये बज़्म मैं है, या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है. Thank you very much. Keep on learning the video, learning English, and just keep on subscribing the channel to a large number of students. Thank you very much.